Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6th, Subject Physics, Chapter number 1 and Lecture number 5. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. टुडे विल टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. So let's start the topic. The amount of space occupied by an object is its volume. The SI unit of volume is the cubic meter and represented as a meter cube. Okay. First of all, you must know what is the meaning of volume. Volume means that how much space will occupied by an object, or you can say that what is the capacity of any object. Like if you have one water bottle and a water bottle saying that it is having the capacity of 1 liter, that means that 1 liter is the volume of that bottle. Okay. And the SI unit, the standard unit of the volume is meter cube. The meter, M for meter and 3 for cube. वॉल्यूम का मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को होल्ड करने की, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम. जैसे आपके पास एक बोतल है और उस बोतल में उसकी बोतल के बाहर लिखा हुआ है दैट इसकी कैपेसिटी 1 लीटर पानी की है. दैट मीन्स उस बोतल का वॉल्यूम क्या हो गया, 1 लीटर. मतलब उस बोतल के अंदर 1 लीटर तक का पानी हम फिल कर सकते हैं, या वो बोतल 1 लीटर तक के पानी को होल्ड कर सकती है, स्टोर कर सकती है. दैट इज़ दी वॉल्यूम. ओके. और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब. द वॉल्यूम इज़ ऑलवेज हैविंग द वी काउंट ऑलवेज द वॉल्यूम्स इन 3 dimensions. That means 3D. That means length, breadth and along with the height. वॉल्यूम को हमेशा हम 3D काउंट करते हैं. मीन्स हाइट भी होगी, लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी. जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे हम ये तीनों चीज़ों को काउंट करेंगे, जबकि एरिया में सिर्फ हम लेंथ और ब्रेथ ही काउंट करते हैं. ओके. द लीटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ वॉल्यूम यूज इन एवरीडे लाइफ. One more unit of the volume is the liter that we use in daily life to measure the liquid. किसी भी लिक्विड को मेज़र करने के लिए हम डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, लीटर एज ए वॉल्यूम की क्या यूनिट यूज़ करते हैं. जैसे 1 लीटर मिल्क हो गया, 1 लीटर वाटर हो गया. ओके. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. ml मीन्स मिलीलीटर. एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. ओके. The liter is also known as the 1000 centimeter cube. And how can we derive the 1000 centimeter cube? Let's see. Since 1 liter is equal to 1 by 1000 meter cube, how does it occurs? कैसे हुआ ये देखेंगे. You can see in the second equation there is a given 1 meter cube is equal to 1000 liters. Okay. We will bring the 1000 on the left hand side below the 1 by 1000 meter cube is equal to 1 liter. So this equation is derived from the second equation. जो सेकेंड इक्वेशन है आपकी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. तो 1000 को हमने क्या कर दिया, 1 के नीचे ले आए, तो क्या हो गया 1 बाय 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. तो जो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 बाय 1000 मीटर क्यूब जो इक्वेशन आपको दिख रही है सिंस के बाद लिखी हुई, वो सेकेंड वाली इक्वेशन है, वहाँ से डिराइव की है. ओके. नाउ नेक्स्ट, 1 liter is equal to 100 centimeter cube by 1000 is equal to 1000 centimeter cube. Okay. In the equation, third equation, which is after the since 1 liter is equal to 1 by 1000 meter cube. So you know very well that the 1 meter is equal to 100 centimeter. We replace the meter cube, 1 meter cube with the 100 centimeter, and we will place the cube above the centimeter. And by solving this we will get the 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. आपको जो थर्ड इक्वेशन दिख रही है सिंस के बाद वाली 1 लीटर इज इक्वल टू 1 बाय 1000 मीटर क्यूब. तो 1 मीटर
आप जानते हैं कि 1 मीटर इजिकल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया 1 मीटर को हटा के 100 सेंटीमीटर लिख लिया, ओके। और क्यूब जो ऊपर लग रहा है, मीटर के ऊपर जो क्यूब लग रहा है वो हमने कहाँ लगा दिया 100 सेंटीमीटर के ऊपर लगा दिया, ओके। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा 1 लीटर इजिकल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? The volume of a liquid is more often expressed in milliliter. The volume of solid that has a regular shape can be calculated using the mathematical formula. The formula for determining the volume of some regular solids are volume of cube is equal to liter cube, that is length cube, where L is the length of the side of the cube and volume of the cuboid is equal to length into breadth into height, okay. So cube is formed by the combination of the square and cuboid is formed by the combination of the rectangles, you can say like this. So cube, all the side of the cube are equal while the sides of the cuboid is not equal. That's why we are multiplying length, breadth and height, and the volume of cube is length cube because length, breadth and height all are same. Clear? And the volume of liquid mostly we express in milliliters. Clear? लिक्विड के वॉल्यूम को, लिक्विड की कैपेसिटी को हम और किस में हम डिफाइन कर सकते हैं, किस ऐसा यूनिट, और क्या यूनिट हो सकती है दूसरी, मिलीलीटर्स, ओके। हम मिलीलीटर्स में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो कुछ सॉलिड्स होते हैं रेगुलर शेप दैट हैविंग द लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसे हम कहते हैं रेगुलर शेप, जिनकी जो साइड्स होती है वो क्या होती है, मेजरेबल होती है, ओके। तो क्यूब की साइड क्या है, सारी साइड इक्वल होती है क्योंकि क्यूब स्क्वायर से मिलके बनता है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, इस वजह से क्यूब की भी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों इक्वल होने के कारण इनको इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेंथ क्यूब, ओके। जबकि क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलके बनता है, रेक्टेंगल की सारी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती है, इस वजह से हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यहाँ करेंगे। सो ये क्या फॉर्मूलाज है, where length is L is length, B is breadth and H is the height of the cuboid. Example, volume of cuboid of side 1 meter, that means there is a 1 cube, okay, and its volume, if we have to find the volume and their side measure 1 meter. So what we will do, we will multiply 1 3 times, length, breadth and height, because length, breadth and heights are same here. So we found 1 meter into 1 meter into 1 meter is equal to 1 meter cube. Clear? क्यूब की साइड्स इक्वल होती है और यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम निकालना और उसकी साइड कितनी है 1 मीटर, ओके। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होगी तो साइड कितनी हो गई 1 मीटर की। तो हम क्या करेंगे 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 and 3, ओके, और हमें मिलेगा 1 मीटर क्यूब। Next is volume of cube of side 1 centimeter. Only the units is getting changed. It was meter, now it is centimeter. यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुई है, यूनिट्स चेंज हुई है, पहले मीटर थी अब सेंटीमीटर हो गई, ओके। सो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद द साइड 10 सेंटीमीटर, it's the same, again only the number is changed here. So 10 into 10 into 10 centimeter cube is equal to 1000 centimeter cube. Clear? Again the volume of cube with the sides 1 dm, dm is the decimeter. So you just simply have to multiply 1 3 times and you will get 1 decimeter cube. 100 centimeter cube is equal to 1 decimeter cube and 1 liter is equal to 1000 ml, okay. ml means milliliter. So 1 centimeter cube is equal to 1 milliliter. As you know that the 1 liter is equal to 1000 centimeter cube is equal to and 1 liter is equal to 1000 milliliter. So you can replace the liter with the 1000 milliliter. So 1000 will
क्रॉस आउट एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब विल इक्वल टू दी 1 मिलीलीटर। ओके, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे दे रखा है 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होता है 1000, और पहले हमने पढ़ा था तब क्या था 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर रख दिया हमने, 1000 से 1000 कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 1 मिलीलीटर के। ओके, आपको इक्वेशंस को एक दूसरे की जगह प्लेस करना आना चाहिए, तब आपको ये समझ आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई, दैट volume of cylinder is equal to pi, we call this sign as a pi, r square h, that means pi radius and height. Cylinder is like a two spherical face with this one long flat face. Okay, cylinder कैसा होता है, दो ऊपर एक फ्लैट सरफेस होते हैं दो, और बीच में क्या होता है ऊपर दो स्पैरिकल सरफेस होते हैं और बीच में एक क्या होता है फ्लैट सरफेस, उसे हम सिलेंडर कहते हैं। जैसे जो हमारा सिलेंडर आप देखेंगे ऊपर और नीचे सर्कल गोल फेस है और बीच में क्या है एक फ्लैट फेस है, तो उसे हम कहते हैं सिलेंडर। वेयर आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर इज द शेप, सिलेंडर क्या है शेप है, शेप का नाम है, उसका अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज कांस्टेंट, पाई की फिक्स वैल्यू है। ओके, 22/7। आर की वैल्यू वेरी कर सकती है और एच की वैल्यू भी आपको दे रखी होगी। इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नीड्स टू बी मेजर एक्यूरेटली। फॉर दिस पर्पज मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड। मेजरिंग सिलेंडर इज अ cylindrical glass container that has a marking graduation on it. Measuring cylinder are available in different size ranging from 10 ml to 1000 ml. That means 10 meter cube centimeter cube is equal to 1000 centimeter cube. In the laboratory, in the chemistry, in the biology, whatever the laboratory research center, whatever it is, okay, we need to have liquid with the accurate measurement. Okay, and that's why there are some container made up of glass that is known as the measuring cylinder. Okay, measuring cylinder in which on which the markings are done like the 10 ml, 1000 ml, 100 ml, and we can use that glass cylinder to take the measurement of the liquid for the accuracy. Okay, लेबोरेटरी में जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो भी सामान हम लेते हैं एज ए इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल, चाहे वो लिक्विड ही ले रहे हो, अगर हम पानी भी ले रहे हैं तो उसका मेज़रमेंट क्या होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए। तो लिक्विड्स को मेज़र करने के लिए ग्लास से बने हुए क्या होते हैं कंटेनर होते हैं जिसे हम सिलेंडर कहते हैं। ओके, एक लंबी सी ट्यूब होती है, नीचे फिर एक स्टैंड के लिए बना हुआ होता है, बेस बना हुआ होता है, उस पर क्या होती है 10 ml से लेके 1000 ml तक की मार्किंग होती है और उस मार्किंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं लिक्विड को मेज़र करके ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट concept of rest and motion. So let's see what is the meaning of rest and motion. First is rest. An object is said to be rest if it does not change its position with respect to its surroundings with the passage of time. Rest means when there is no movement, no changing of position, no moving from one place to another with the passage of time and with respect to surroundings or द ऑब्जर्वर। ओके, रेस्ट का मतलब क्या होता है, मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक इंसान एक जगह पे पर्टिकुलर जगह पे कब से खड़ा है या बैठा है। ओके, रेस्ट का मतलब आराम होता है। एक पर्सन एक जगह पे कब से बैठा हुआ है या खड़ा है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, वो टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है या मूवमेंट नहीं करता है, पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, या उसके आसपास सराउंडिंग में जो भी ऑब्जर्वर उसे देख रहा है या कोई भी सराउंडिंग में पर्सन खड़ा है वो उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं रेस्ट। सिंपली टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है उसे हम कहते हैं
rest. Okay. Next is motion. A body is said to be in motion if position change continuously with respect to the surrounding or with respect to an observer with the passage of time. Now there is a person who is changing his position with the passage of time, with the passes of the time, okay, with the passes of time, and there is another person who is observing their the first person position and the changes, that is known as motion. मोशन का मतलब क्या हुआ, एक इंसान या एक ऑब्जेक्ट कोई भी है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ओके। और एक और पर्सन उसके पास में खड़ा है, वो उसको कब से ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं और दोनों को कंपेयर करके आपस में बात कर रहे हैं। रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म, नॉट द एब्सोल्यूट टर्म, ओके। रिलेटिव टर्म मीन्स to take the reference of other to compare one each other, okay। मतलब reference, relative terms का मतलब क्या होता है, relative मतलब relation, मतलब किसी भी चीज़ या इंसान को आप क्या कर रहे हो, कंपेयर करके उससे बात कर रहे हो, उसे हम कहते हैं रिलेटिव टर्म्स। और एब्सोल्यूट टर्म मतलब उससे उसका कोई रेफरेंस नहीं ले रहे हम, ओके। तो रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिव टर्म्स होता है, मतलब हम दूसरों के रेफरेंस में बात करते हैं। अगर कोई इंसान मेरे सामने कंटिन्यूसली खड़ा है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है या टाइम के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, और मैं उसको कब से ऑब्जर्व कर रही हूँ, मतलब वो मेरे लिए, वो पर्सन मेरे लिए क्या हो गया, रेस्ट की पोजीशन में हो गया। लेकिन वही इंसान अगर हर 5 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो मेरे लिए वो इंसान क्या हो गया, मोशन में हो गया। क्लियर? सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस लेक्चर, वी विल कंटिन्यू दिस पेज in our next lecture. There is no homework, but you can practice this equation in the rough copy so you won't get confused. आप ये जो भी इक्वेशंस है, आपका होमवर्क नहीं है, बट ये जो भी इक्वेशंस है आप क्या करोगे, इसके जो फॉर्मूला और जो इक्वेशंस है आप रफ नोटबुक में सॉल्व करिए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे और आप इक्वेशंस को कैसे एक दूसरे की जगह रख के कैसे सॉल्व करते आपको समझ में आ जाएगा, ओके। Thank you, and till then stay safe, take care and have a nice day.